السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد میں آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران مذاکرات ہونے کا امکان، جمعے کو بات چیت ممکن، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ظاہر کی توقعات۔ جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، کشیدگی میں کمی لانے اور بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان کی پریس کانفرنس۔ سفارتی کوششوں کے باوجود آبرائے ہرمز میں کشیدگی برقرار، ایران کی جانب 3 جہازوں پر فائرنگ، 2 کو قبضے میں لے لیا گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امریکہ ایران مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششوں میں مصروف، پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان۔ ایرانی حکومت نے میری درخواست پر 8 خواتین کی سزائے موت پر عمل روک دیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ۔ اور ایران جنگ فوری ختم کر دی جائے، ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر کی امریکی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے کوئی حتمی مدت مقرر نہیں کی گئی، ہم ایک متفقہ رد عمل اور جواب کی منتظر ہیں۔ اس دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ ناکہ بندی، دھمکیوں اور وعدوں کی خلاف ورزی مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں مبینہ طور پر مظاہروں میں شامل 8 خواتین کو ایرانی حکام سے ان کی درخواست کے بعد اب پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے پہلے دور میں ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے محمد باقر غالباف کا کہنا ہے کہ فوجی جارحیت سے اہداف حاصل نہیں ہو سکتے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران مذاکرات ہونے کے امکان کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ یہ امکان ہے کہ جمعے کو مذاکرات ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے دوبارہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے کشیدگی میں کمی لانے اور سفارتکاری و اعتماد سازی کے لیے اہم موقع قرار دیا ہے۔ یو این ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں تمام فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو جنگ بندی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تنازع کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں۔ انہوں نے مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھی حمایت کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ان سے جامع اور دیرپا تصفیے کی راہ ہموار ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارگ نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ مذاکرات کرتے ہوئے مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ To reach a sustainable and lasting solution. The Secretary General fully supports Pakistan's efforts in facilitating further talks, and he hopes that these efforts will contribute to creating conditions conducive to a comprehensive and durable solution to the conflict. On the Secretary General's task force to get fertilizer through the Strait of Hormuz, Jorge De Silva gave an interview, I think yesterday, saying that within 7 days things should be up and running. Does the extension of the ceasefire help that? Is everything going according to the timeline? I think it needs, I don't have the exact quote that you were quoting in front of me. What I'm sure he said is that once there is an agreement, it would take 7 days to have the system up and running. So it's a matter of once there is a green light, a political agreement to do so, he pulls the cord and it'll take 7 days to get the system up and running. He did not say, as far as I know, that it will be ready in 7 days from today. Okay, but I mean that's and your microphone, sorry. Does the ceasefire extension help matters? Well, listen, I mean, our aim is not to have a UN system in place. Our aim is to see the Strait of Hormuz reopened fully, for all to respect their obligations to ensure that we have freedom of navigation in these international waterways. Ships need to be able to come in and ships need to be able to come out. The fact that this is not the case is already having a big impact around the world, and we're all feeling it, you know, from the price of energy
in this country to the price of fertilizer and energy in Sri Lanka and many other countries. But obviously, if it cannot be open. सफारती कोशिशों के बावजूद आबनाए हरमुज़ में कशीदगी बरकरार है और ईरान के साहिल के करीब जहाज़ों को पकड़ने की इतलात मौसूल हो रही है। ईरान ने आबनाए हरमुज़ में 3 जहाज़ पर फायरिंग की और 2 को कब्ज़े में ले लिया, जिससे इस अहम आलमी गुज़रगाह में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ये पेशरफ्त इस वक्त हुई जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी तो की, मगर ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रही। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताअत्तुल ने इस रास्ते से होने वाली तकरीबन तमाम बरामदात को मुतासिर किया है, जहां से आम हालात में दुनिया के 20% तेल की तरसील होती है। इस दौरान वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये इक़दाम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं, क्योंकि ये अमेरिकी या इसराइली जहाज़ नहीं थे। इससे कबल अमेरिका भी 2 ईरानी जहाज़ कब्ज़े में ले चुका है। ये तंग आबी गुज़रगाह खलीज फारिस को आलमी मंडियों से मिलाती है और दुनिया की तेल व गैस रसद का एक बड़ा हिस्सा इसी से गुजरता है। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर बमबारी शुरू होने के बाद यहाँ बहरी आमद व रफ्त में नुमायाँ कमी आई है और इंश्योरेंस अखराजात में इजाफा हो गया है। अमेरिकी महकमे जंग की जानिब से अमेरिकी कांग्रेस को आगाह किया गया है कि आबनाए हरमुज़ में ईरान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 माह लग सकते हैं। ईरानी अवाम ने मौजूदा सूरत हाल को गैर यकीनी करार दिया और चंद अफराद ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ईरानी अवाम ने इस बात की तवक्को ज़ाहिर की कि मुस्तकिल जंगबंदी की राहें हमवार हो सकती हैं, बशर्त ये कि दोनों फरीक़ैन संजीदगी का मुज़ाहरा करें। So far, the United States has achieved no serious gains. On the other hand, the Strait of Hormuz has also been closed, and the issue of uranium enrichment, as well as that 400 kilograms it wanted removed from the country, has in practice not happened. So the United States has gained nothing so far and is certainly seeking to continue the war and secure some advantage. It appears there is preparatory positioning for a renewed start from the US side. At least in my view, there is a renewed beginning in the making, and it wants to attack again, and in any case gain a number of but in order to continue pursuing the goals it has, it is compelled to carry out certain actions that lead the other side to develop a degree of relative trust. अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वैप की सहूलत के लिए दरख्वास्त की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेनेट के समाअत में बयान देते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा कि करेंसी स्वैप की दरख्वास्त करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। इन्होंने कहा कि करेंसी स्वैप का मकसद अमेरिका में इत्तेहादी ममालिक के असासों की बेहंगम फ़रोख्त रोकना भी होता है। करेंसी स्वैप मुआहदे के तहत अमेरिका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फ्राहम करता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि डॉलर के बदले में अमेरिका इस मुल्क की करेंसी लेता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मोहसिन नकवी से अमेरिकी ओहदेदारान से भी मुलाकात की, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में अमेरिका ईरान तनाज़ी के देरपा हल के सफारती चैलेंजेस के तसल्सल की ज़रूरत पर जोर दिया गया और वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। अमेरिकी हुकाम ने खित्ते में क़याम, अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त पर 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत पर अमल रोक दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में ट्रंप ने लिखा कि उन्हें अभी बताया गया है कि जिन 8 ख़वातीन को आज सज़ाए मौत दी जाई थी, उन्हें अब सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इनमें से 4 ख़वातीन को फ़ौरी रिहा किया जाएगा, जबकि 4 को 1 माह की क़ैद के बाद रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि वो इस अमर को सराहते हैं कि ईरानी क़यादत ने बतौर अमेरिकी सदर उनकी इस दरख्वास्त का एहतराम किया और इन ख़वातीन की सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया। ट्रंप की जारी करदा तस्वीर में सिर्फ एक खातून की शनाख्त हो सकती थी जो रवां बरस हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरे में शरीक थी, जबकि दीगर के बारे में मालूमात सामने नहीं आ सकी।
डेमोक्रेटिक सीनेटर चुक शोमर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद करते हुए फौरी तौर पर ईरान जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर जारी बयान में चुक शोमर ने कहा कि हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये तबाहकुन जंग जितनी देर जारी रहेगी हाथ उतने ही ख़राब होते जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तबाहकुन जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम गहराई से मज़ीद गहराई की तरफ धंसते जा रहे हैं। चुक शोमर ने ट्रंप को टैग करते हुए कहा कि इस जंग के बायस अमेरिका की मईशत, अस्करी तैयारी और कौमी सलामती पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। इस्लामाबाद में आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मुज़ाकिरात होने का इम्कान। जुमे को बातचीत मुमकिन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर की तवक्कुआत। जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, कशीदगी में कमी लाने और बातचीत दोबारा शुरू करने का अच्छा मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफारती कोशिशों के बावजूद आबरा हरमुज़ में कशीदगी बरकरार। ईरान की जानिब 3 जहाज़ों पर फायरिंग, 2 को कब्जे में ले लिया गया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशों में मसरूफ़। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान। ईरानी हुकूमत ने मेरी दरख्वास्त पर 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत पर अमल रोक दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया नया दावा। और ईरान जंग फौरी ख़त्म कर दी जाए, डेमोक्रेटिक सीनेटर चुक शोमर के अमेरिकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। इसी के साथ ही आलमी ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।